Good morning, students. Our subject is Design of Concrete Structure 1. Our today's topic is Design of Staircase by Working Stress Method. Before starting design of stair, we are going to study about the introductory part about a stair. So, what is stair? A set of steps leading from surface of a building to another surface, typically inside the building, is termed as a stair. For vertical communication between two floors, we used stairs. Okay, so in this lecture we are going to study how to design a staircase and what is the procedure. Before starting design procedure, we are going to study here the parts of the stairs. Okay, so why do we need a stairs? To protect people from injury and to facilitate access during a movement from one level to another level in a building. Communication between two layers, between two floors, this is a vertical communication. It is called as a staircase. Okay, so part of stair, we start here. Parts of stair. First part of the stair is step. It is a portion of stair which permit a ascent and descent to up and down from one floor to another floor. For that we used a step. This portion like this, it is called as a stairs. Okay, this one step, it is used to ascend and descend from one floor to another floor. Okay, now second is a tread. It is the upper horizontal portion of a step. What is tread? This horizontal portion, it is called as a tread. This portion it is called as a tread. It is a upper horizontal portion of a step upon which the feet is placed. Here we placed our feet from one step to another step. This called as a tread. Okay, third, riser. The vertical portion between each tread on a stair, means between these two tread, this vertical portion, it is called as a rise. It is called as a rise. It is a vertical portion placed between two tread. So what is handrail? A handrail is a rail that is designed to be graced by the hand so as to provide a stability or support. For support, we provide here handrail. This portion, it is called as a handrail. Okay, it's a handrail. Now, what is a baluster? It is a vertical member of wood or metal supporting the handrail. Means here, to support a handrail, here we provide a baluster. Okay, now newel post. This is a vertical member which is placed at the end of flight to connect handrail. This is a step from this layer to this layer. It is connected by handrail. This is called as a newel post. What is run? It is a total length of stair in horizontal plane including landing. Means what is run between these two? Here is a staircase. This portion, it is called as a run. Okay, what is nosing? It is the projecting part of the tread beyond the face of the riser. Means here tread and this is a riser. Here we provided a nozzle. It is rounded to give a good architectural effect. Next, string or stringer. These are the sloping wooden member which support the step. This inclined member, it is called as a stringer. The run along the slope of the stair. Main part of stair by using diagram. This is a stair. This horizontal portion is called as a tread. This vertical post is called as a newel. This is a newel cap.
This is a handrail. This inclined member is a handrail. Baluster is supports. These all support is called as a baluster. Nosing. This rounded portion, it is called as a nosing, and this vertical portion, it is called as a riser. Okay, this horizontal portion from here to here with landing, it is called as a run. This inclined member, it is called as a stringer, and this height from half floor, this is called as a rise. Floor to floor or half floor, this is called as a rise. Okay, now type of stairs. First type of stair is straight stair, second is dogleg stair, third is a quarter turn stair, fourth is a open navel stair, fifth is a 3/4 turn stair, sixth is a bifurcated stair, 7 is a geometric stair, and 8 is a circular stair. Now we are going to study here first straight stair in detail. So what is straight stair? From one floor, it is a first floor, it is a second floor. To connect these two floor, only one steps is provided. This step is called as a straight stair. These are the stair along which there is no change in a direction on any flight. यहाँ पे कौन से भी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं. ये स्ट्रेट होता है, मतलब एक ही पूरा स्टेप्स हम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर तक प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट स्टेयर. यहाँ पे कौन सा भी टर्न नहीं है, सिर्फ एक टाइप के ही स्टेप्स है और वो फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर तक हमने कनेक्ट किए हैं. दीज आर द स्टेयर अलॉन्ग विच देयर इज़ नो चेंज. दिस इज़ नो चेंज, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रेट स्टेयर. It is used where staircase hall is long or narrow. Where we used straight stair, it is used where staircase hall is long and narrow. जब आपके हॉल की साइज़ लॉन्ग होगी तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट स्टेयर हम प्रोवाइड करते हैं. या फिर हमको दो स्टेयर्स में टर्न लेने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रेट स्टेयर ही प्रोवाइड करते हैं. यानी ऑब्स्ट्रक्शन से ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, बहुत बार बाहर से हमें फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर तक कनेक्ट करना है तो ऐसे कंडीशन में भी हम जो मेटल या स्टील के जो स्टेयरकेस होते हैं स्ट्रेट स्टेयर, वो भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं एज अ स्ट्रेट स्टेयर. ओके, सेकंड इज़ अ डॉगलेग स्टेयर. व्हाट इज़ अ डॉगलेग स्टेयर? अभी हमने देखा स्ट्रेट स्टेयर में कौन सा भी टर्न नहीं था. यहाँ पे देखो, अभी टर्न से ये यहाँ से आप ऊपर जा रहे, फिर यहाँ से एक टर्न ले रहे, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है. दिस डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज अ डॉगलेग स्टेयर. और एक चीज़ है यहाँ पे डॉगलेग स्टेयर में, ये जो दो यहाँ पे ट्रेड के बीच में का ये गैप है, ये बहुत कम होता है, तो इसको बोलते हैं हम डॉगलेग स्टेयर. इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 स्ट्रेट फ्लाइट ऑफ स्टेप विद एब्रंट टर्न बिटवीन देम. अ लेवल लैंडिंग इज प्लेस्ड अक्रॉस द 2 फ्लाइट एट द चेंज ऑफ डायरेक्शन. यहाँ पे देखो दो जो हमने चेंज किया है, तो 2 लेवल में लैंडिंग इज प्लेस्ड अक्रॉस द 2 फ्लाइट. ये 2 जो फ्लाइट है इसके बीच में हमने यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम लैंडिंग बोलते हैं. हमने लैंडिंग प्रोवाइड किया और यहाँ पे डायरेक्शन भी हमने चेंज किया है, इसको बोलते हैं हम डॉगलेग स्टेयर. दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज़ यूजफुल वेयर द विड्थ ऑफ स्टेयर केस हॉल इज जस्ट सफिशिएंट टू अकोमोडेट टू विड्थ ऑफ स्टेयर. जहाँ पे हम सफिशिएंटली दो फ्लाइट चेंज कर सकते हैं, ऐसे पोजीशन में हम ये डॉगलेग स्टेयर प्रोवाइड करते हैं. नॉर्मली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम डॉगलेग स्टेयर केस ही प्रोवाइड करते हैं. और बहुत बार पब्लिक में हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या है पब्लिक में हमें विड्थ ज़्यादा लगती है, उसके लिए हम दूसरे भी टाइप्स यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही हम डॉगलेग स्टेयर केस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है क्वार्टर टर्न स्टेयर. क्वार्टर टर्न स्टेयर ये यहाँ पे देखो 90 डिग्रीज़ का एंगल है, ऐसे एंगल में हम ये प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे देखो कैसे था ये डॉगलेग स्टेयर केस में हमने देखा, तो यहाँ पे कैसा है, हम 90 डिग्रीज़ में इसको ये करते, इसको क्वार्टर टर्न बोलते हैं हम. और स्ट्रेट टर्निंग
थ्रू वन राइट एंगल इज नोन एज अ क्वार्टर टर्न स्टेयर। यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम क्वार्टर टर्न स्टेयर। द चेंज इन अ डायरेक्शन कैन बी affected by either introducing a landing or by providing a winders। तो बहुत बार हॉल में जगह नहीं होने की कैसी जगह है उसके एडजस्टमेंट थ्रू हम ऐसे क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस भी प्रोवाइड करते हैं। अभी नेक्स्ट है ओपन निवेल स्टेयर। तो हमने देखा डॉगलेग स्टेयर और ओपन निवेल स्टेयर ये दोनों भी सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला आपको, ये देखो यहाँ पे गैप कैसा है, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये गैप बड़ा है। डॉगलेग स्टेयर और ओपन निवेल स्टेयर में सिर्फ क्या डिफरेंस है, दो जो डायरेक्शंस है फ्लाइट से उसके अंदर क्या है, गैप है। जिसके अंदर गैप है उसको बोलते हैं हम ओपन निवेल स्टेयर। तो यहाँ पे हम ये गैप प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत बार ऐसे जो स्टेयर केस होते हैं वो हम पब्लिक बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपको लैंडिंग बड़ी मिलती है। ये ऐसा होने की वजह से इतना जो गैप है ये ज़्यादा लैंडिंग मिलती है और ज़्यादा पीपल्स यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे ओपन निवेल स्टेयर केस ये पब्लिक बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर देयर इज़ अ वेल और ओपनिंग बिटवीन अ फ्लाइट इन अ प्लेन। यहाँ पे ओपनिंग रहता है, इसको बोलते हैं हम ओपन निवेल स्टेयर। तो ये ओपन निवेल स्टेयर हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक में, पब्लिक प्लेसेस में, हमें जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होती है और लैंडिंग में बहुत सारे पीपल्स एडजस्ट होने चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम से ओपन निवेल स्टेयर केस प्रोवाइड करते हैं। दिस वेल मे बी रेक्टेंगुलर और एनी जियोमेट्रिक शेप एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग द लिफ्ट। तो इसके बीच में लिफ्ट वगैरह भी फिक्स करने के लिए आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बीच में का पोर्शन है तो वहाँ पे लिफ्ट होगी और ऐसे टर्न करके जाएगा, तो ऐसे बोलते हैं हम ओपन निवेल स्टेयरकेस। फिफ्थ टाइप्स है हमारा थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर। थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर मतलब यहाँ पे आपके 3 टर्न्स है। ये फर्स्ट टर्न, यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, ये थर्ड वाला, तो ऐसे 3 टर्न्स है, इसको बोलते हैं हम 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। अ स्टेयर टर्निंग थ्रू राइट एंगल 270 डिग्री, यहाँ का जो एंगल है वो 270 डिग्री है, तो उसको बोलते हैं हम 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। एंगल कितना है 270, ये पहला हो गया 90, फिर 90, फिर 90, तो उसको बोलते हैं हम 270। इट इज़ कॉल्ड एज अ 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। आपको यहाँ पे क्वार्टर टर्न स्टेयर, यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है, इसको बोलते हैं हम क्वार्टर टर्न। और 3 क्वार्टर टर्न मतलब यहाँ पे 3 90 डिग्रीज के एंगल है, टोटल मिला के कितना हुआ 390 मतलब 270, इसको बोलते हैं हम 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। इन दिस केस एन ओपन वेल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ओपन वेल ऐसे फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ओपन वेल स्टेयर भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका एंगल कितना होता है 270 डिग्री। और ये बहुत बार हम क्या करते हैं, जहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह है तो ऐसे अपार्टमेंट कंडीशन में हम बहुत बार ऐसे प्रोवाइड करते हैं, और जैसी जगह एडजस्ट होगी उसके हिसाब से भी हम ऐसे स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बैफ्रिकेटेड स्टेयर्स। तो ये स्टेयर्स देखो, पहले स्टार्टिंग स्ट्रेट है, उसके बाद में ये दोनों डायरेक्शन में लेफ़्ट और राइट में चेंज हो रहे हैं। ये पहले स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद में ये लेफ़्ट में जा रहा है, इधर राइट में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बैफ्रिकेटेड स्टेयर्स। दिस स्टेयर आर सो अरेंज दैट देयर इज़ अ वाइड फ्लाइट at the start which is a further subdivided into 2 narrow flight at the mid landing। यहाँ पे क्या होता है, पहले आपके पास में जगह कम है, तो फिर आप क्या करते हो, ऐसे पोर्शन में पहले विड्थ प्रोवाइड करते हो, उसके बाद में लैंडिंग जहाँ पे ख़त्म होगी हमारी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में इसको सब डिवाइड कर देते हैं into 2 narrow flight at the mid landing। The 2 narrow flights start from either side the mid landing। These stairs are suitable for modern सब बिल्डिंग। जो मॉडर्न सब बिल्डिंग होते हैं, बड़े हॉल्स होते हैं, तो अलग अलग रूम्स में जाना है, तो एक लेफ़्ट में राइट में है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे बैफ्रिकेटेड स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल स्टेयर।
तो ये डॉगलेग स्टेयर किसकी तरह है, सिर्फ इसका बीच में का जो पोर्शन है वो देखो कैसा है जियोमेट्रिक के, और यहाँ पे जो बीच में के लैंडिंग के यहाँ के जो स्टेयर्स है ये कैसे हम थोड़े से राउंडेड शेप में हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेट नहीं होते जैसे हमने डॉगलेग स्टेयर में स्ट्रेट स्टेयर ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, कुछ स्टेयर्स का एंगल हम चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिक स्टेयर। दिस स्टेयर हैव नो निवेल पोस्ट एंड आर ऑफ एनी जियोमेट्रिकल शेप। द चेंज इन डायरेक्शन इज अचीव्ड थ्रू वाइंडर्स। तो ये चेंज इन डायरेक्शन हम ऐसे ही करते हैं, मतलब एंगल्स चेंज करते हुए। यहाँ पे भी हम स्टेयर्स ऐसे डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं एंगल्स में। दिस स्टेयर्स रिक्वायर्ड अ मोर स्किल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड आर अ वीकर देन ओपन निवेल स्टेयर्स। ओपन निवेल स्टेयर से ये थोड़ा वीक होता है, और इसके जो स्टेयर्स है ये क्या होते हैं, एंगल्स में होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से एक्सीडेंट होने के भी, मतलब स्टेयर से गिरने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टेयर्स जो होते हैं यहाँ पे स्टेयर्स जो है ना ये एंगल में प्रोवाइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है 8th टाइप, स्पाइरल और सर्कुलर स्टेयर। स्टेयर तो ये जो टाइप है स्टेयर का ये है सर्कुलर स्टेयर, तो इट इज़ नोन एज अ स्पाइरल स्टेयर भी हम इसको बोलते हैं। व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप इट अपीयर टू फॉलो अ सर्कुलर विद अ सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो ये इसका सिंगल सेंटर है, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिंगल सेंटर है, और इसको पूरा ऐसे राउंड में ये इधर से ऐसे ऐसे जाना, तो ऐसे ये स्टेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं आप स्पाइरल और सर्कुलर स्टेयर। द स्पाइरल स्टेयर आर प्रोवाइडेड वेयर द स्पेस अवेलेबल इज़ लिमिटेड एंड ट्रैफिक इज़ लो। जहाँ पे मतलब पीपल ऊपर नीचे करने वाले कम हैं और जगह आपके पास में कम है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, ये स्पाइरल और सर्कुलर स्टेयर का यूज़ करते हैं। दिस स्टेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन आरसीसी स्टील और स्टोन। आप स्टील का यूज़ करके, आरसीसी का यूज़ करके भी ऐसे स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे स्टेयर्स मतलब हमें फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्टली थर्ड फ्लोर पे जाना है, आपको बीच में नहीं, तो ऐसे आप स्टेयर्स, या फिर जो वाटर टैंक्स होते हैं, पब्लिक वाटर टैंक्स, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी ऐसे स्टेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं और इंस्पेक्शन के लिए। और इसके ऊपर ऐसे हम स्लैब कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे, ये वाटर टैंक में आपने बहुत बार देखा होगा पब्लिकली, तो ऐसे हम स्पाइरल स्टेयर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर। तो जनरल क्या क्या रिक्वायरमेंट है गुड स्टेयर्स, मतलब अच्छे स्टेयर कैसे होने चाहिए, उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के वो क्या क्या है उसकी स्टडी हम करेंगे। क्योंकि क्या है, स्टेयर की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, या फिर आपको इजीली वर्टिकल कम्युनिकेशन करने के लिए आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि कहाँ पे होगा, कितनी साइज़ होनी चाहिए, कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। टू प्रोवाइड अ ईजी, क्विक एंड सेफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्लोर्स। बिटवीन टू फ्लोर्स हमें क्या करना है, सेफली, इजीली, विदाउट एनी एक्सीडेंट हमें जल्दी से ऊपर नीचे करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम स्टेयर का यूज़ करते हैं। फॉलोइंग्स आर द जनरल गाइडलाइन और रिक्वायरमेंट विच स्टेयर शुड फुलफिल। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, वो हमें फॉलो करना है जब हमें स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये एज पर गाइडलाइंस है, बिल्डिंग बायलॉज हमें जैसे प्रोवाइड करते हैं वैसे ही गाइडलाइंस है कि ट्रेड कितना होना चाहिए, राइज कितना होना चाहिए, उसके बाद में कैसे प्रोवाइड करना चाहिए स्टेयरकेस, तो उसकी वजह से क्या है, एक्सीडेंट भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है लोकेशन। लोकेशन मतलब आपको कहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड करना है। इट शुड बी सो लोकेटेड एज टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू ऑक्यूपेंट बिल्डिंग। मतलब क्या है, ईजीली एसेस करने के लिए आप फर्स्ट फ्लोर से, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है और इसके ऊपर यहाँ पे आपका सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, तो आपको ये फ्लोर से यहाँ पे जाना है, तो आपका यहाँ से एंट्री पॉइंट है,
तो आप लास्ट में रख सकते हो क्या, आप यहाँ से आपको पूरा घूम के यहाँ से फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इससे इतनी दूर हम लोकेशन नहीं देते। अभी यहाँ पे आपका हॉल है, फिर किचन है, फिर इधर इसके साइड में बेडरूम है, और उसके पीछे के साइड में आप ये दे रहे हो, स्टेयरकेस दे रहे हो। तो ये ऐसे मतलब ऊपर नीचे जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, फिर ऐसे जहाँ पे हॉल की एंट्री होगी तो उसके साइड में हम क्या करते हैं, या फिर हॉल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इजीली एक्सेस होने के लिए ऐसे लोकेशन हम चूज़ करते हैं, जहाँ जो लोकेशन चूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। It should be so located that it is a well lighted and ventilated from direction the exterior. ये लोकेशंस कैसा होना चाहिए, ये वेंटिलेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाना है। तो डे में भी लाइट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लोकेशन ऐसे चुनना है कि वहाँ पे लाइटेड और वेंटिलेशन भी होना चाहिए। ओके, सेकंड इसका रिक्वायरमेंट है विड्थ ऑफ स्टेयर। तो जो विड्थ होती है स्टेयर केस की, वो कितनी होनी चाहिए। मतलब हमने देखा ये राइज है, ये ट्रेड है, और ये इधर के डायरेक्शन में, ये हमारे ऐसे स्टेयर से के, तो ये इधर के डायरेक्शन में जो है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इट शुड बी अ वाइड इनफ टू कैरी द यूज़र विदाउट मच क्राउड एंड इनकन्वीनियंस। इट डिपेंड अपॉन अ लोकेशन इन अ बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो विड्थ ऑफ स्टेयर केस मतलब कितनी होनी चाहिए, एट अ टाइम कितने पीपल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ये विड्थ ऑफ स्टेयर चूज़ करते हैं। अभी पब्लिक बिल्डिंग है, मतलब टाइप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें कितने पीपल्स रहेंगे, रेसिडेंशियल मतलब घर में 4 5 इतने मेंबर्स होते हैं घर में, 4 5 10 तक। तो ऐसे में क्या होता है, फिर रेसिडेंशियल में उसकी विड्थ कम भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा उतनी विड्थ में हम पब्लिकली मतलब एखादा हॉस्पिटल है या फिर स्कूल है, कॉलेजेस है, ऐसे बिल्डिंग्स में क्या है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जाते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में बच्चे भी होते हैं, तो उनको ऊपर नीचे करने के लिए वो स्टेयरकेस का यूज़ करते हैं। तो उसकी विड्थ कम होगी तो फिर क्राउड को प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम फिर उसकी विड्थ बढ़ाते हैं। तो ये विड्थ काय के ऊपर डिपेंड है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो विड्थ कम होती है, पब्लिक बिल्डिंग है तो विड्थ हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद में उसका लोकेशन कहाँ है, कौन से टाइप का स्टेयरकेस प्रोवाइड करना है, वो हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। इन डोमेस्टिक और रेसिडेंशियल बिल्डिंग द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर शुड बी 900 mm। मतलब हम 900 to 1 मीटर तक हम ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब 0.9 मीटर to 1 मीटर तक हम ये प्रोवाइड करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो विड्थ होती है वो। लेकिन वाइल इन अ पब्लिक बिल्डिंग ये वेरी बिटवीन 1.2 मीटर to 1.8 मीटर, ये हम 1.2 मीटर to 1.8 मीटर तक हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है और ऊपर नीचे करने वाली पब्लिक्स भी ज़्यादा होती है। घर में इतना नहीं होता है, या फिर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट है, फ्लैट सिस्टम्स है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्राउड ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर 2 डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक डायरेक्शन होगा, मतलब 2 साइड्स में हम पब्लिक में प्रोवाइड करते हैं स्टेयर्स। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ बढ़ाते हैं। वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर to 1.8 मीटर। ओके, ये ध्यान में रखो, ये हमें यूज़ करना है आगे। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए विड्थ होनी चाहिए 900 mm, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए विड्थ होनी चाहिए 1.2 मीटर to 1.8 मीटर। ये वैल्यूज़ हमें आगे यूज़ करना है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थर्ड है लेंथ ऑफ फ्लाइट। तो फ्लाइट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी स्टेप्स होने चाहिए फ्लाइट के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। द नंबर ऑफ स्टेप आर नॉट मोर देन 12 एंड नॉट लेस देन 3। मतलब जो स्टेयर्स है हमारे नंबर्स, एक ऐसे, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे जो फ्लाइट्स होते हैं, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, ऐसे जो है ये 3 से कम या 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम देखना है पिच ऑफ स्टेयर। पिच ऑफ स्टेयर मतलब क्या, ये आपके जो स्टेयर्स है,
ये इंक्लाइन लाइन होती है और इसके अंदर का यहाँ का जो एंगल्स होता है इसको बोलते हैं हम पिच ऑफ स्टेयर्स। अ कंफर्टेबल स्लोप इज अचीव्ड when twice rise plus going is equal to 60 centimeter. Approximately pitch should be however be limited to ये जो पिच है इसका एंगल कितना होना चाहिए, ये है 30 डिग्री टू 45 डिग्री तक होना चाहिए। नहीं तो उसकी वजह से क्या है, हम मतलब हमने पूरा 90 डिग्रीज़ का एंगल डाला तो आप चढ़ सकते हो क्या ऐसे, तो एंगल कितना होना चाहिए फिर पिच ऑफ स्टेयर का 30 डिग्री टू 45 डिग्री तक ये एंगल होना चाहिए। नहीं तो आपको अप एंड डाउन करने में प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिफ्थ है हेडरूम। हेडरूम मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, अभी हमारा ये फ्लोर है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब ये ऐसा नीचे से आया, ये ऊपर तक गया और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो क्या होता है कि कोई पर्सन है तो वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसके हाइट के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ तक हेड देते हैं, क्योंकि आपने क्या किया डायरेक्टली कहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करना है, मतलब हेड ऊपर वाला आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर में, मतलब हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, और एपेरियंस में आपने देखा होगा कि ऐसी बिल्डिंग होती है बहुत बार। ये देखो, तो ये इतना जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टेयर्स है तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला इसको बोलते हैं हेड रूम। तो ये क्या है, ये आदमी यहाँ से आएगा तो उसकी हाइट यहाँ पे तक जानी चाहिए, इसको बोलते हैं हम हेडरूम। क्लियर स्पेस बिटवीन ट्रेड एंड सोफिट ऑफ द फ्लाइट शुड नॉट बी लेस देन 2 मीटर इन एनी केस। ये 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक वाला, ये देखो, तो ये 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो हेड है वो ऊपर के स्लैब को टच हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेफली मूव नहीं कर पाओगे फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर। तो ऐसे कंडीशन में आपको हेड रूम प्रोवाइड करना है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, पर 2 मीटर होनी चाहिए, तो उसकी वजह से आपको अप एंड डाउन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे लोड्स। हमें क्या करना है, लोड्स हमने अभी देखा कि कितने टाइप्स के स्टेयर केस होते हैं, उसके बाद में उसके मतलब रिक्वायरमेंट देखे कि क्या क्या है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, राइज कितना क्या क्या होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया, लोकेशंस कौन सा होना चाहिए। अब हमें देखना है कि ये स्टेयर केस हम डिज़ाइन करते हैं तब इसके ऊपर कौन से लोड्स आते हैं, तो वो लोड के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो लोड के हिसाब से हमें मिलता है कि कितने बार्स प्रोवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। तो जो स्टेयर केस है उसके ऊपर कौन से लोड आने वाले हैं उसकी स्टडी अब हमें यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट है डेड लोड। तो इसके ऊपर कौन सा लोड आने वाला है, डेड लोड। मतलब डेड लोड मतलब क्या, जो स्लैब का लोड है, जो स्टेयर केस का लोड है वो उसके ऊपर आने वाला है, उसको बोलते हैं हम डेड। मतलब उसके अंदर क्या है, सेल्फ वेट होता है, स्लैब का लोड होता है, उसको बोलते हैं हम डेड लोड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोड। तो डेड लोड में 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है सेल्फ वेट ऑफ अ वेस्ट स्लैब। मतलब वेस्ट स्लैब मतलब क्या, ये जो इंक्लाइन मेंबर है और इसके ऊपर ये देखो हमारी स्टेप्स है, इसके बीच में का ये जो भी हम यहाँ पे ये जो भी स्लैब्स प्रोवाइड करने वाले इसको बोलते हैं हम वेस्ट स्लैब। तो इसका भी सेल्फ वेट आता है। इन केस ऑफ फ्लाइट दिस इज अ इंक्लाइन स्लैब, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्क्वेयर रूट ऑफ, कितना होना चाहिए, ये स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी, इतना होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब टू द डेड लोड ऑफ लैंडिंग। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब। ये वेस्ट स्लैब का जो सेल्फ वेट है वो कितना आना चाहिए फिर, अंडर स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। आर मतलब राइज, टी मतलब ट्रेड और टी मतलब ट्रेड। ओके, सेकंड है सेल्फ वेट ऑफ स्टेप। तो ये जो भी आपने एक स्टेप प्रोवाइड किया है इसका भी क्या है, सेल्फ वेट होता है। तो स्टेप इज कंसिडर एज अ बीम विद द डेप्थ इक्वल टू हाफ द राइज ऑफ अ स्टेप। नेक्स्ट है फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश का भी डेड लोड होता है। मतलब इसके ऊपर आप जो भी टाइल्स फिक्स करने वाले हैं, राइज में भी टाइल्स बिठाने वाले हो, ट्रेड में भी आप यहाँ पे भी
हम क्या करते हैं, टाइल्स डालते हैं हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं हम फ्लोर फिनिशिंग। उसके बाद उसको प्लास्टरिंग भी करते हैं, वो पोर्शन जो अनइवन है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर प्लास्टरिंग, उसके बाद में उसको ऊपर टाइल्स बिठाते हैं, तो उसका लोड जो आता है वो आता है फ्लोर फिनिश में। ये भी डेड लोड है, ये मूव नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। ये जो 3 लोड्स है ये फिक्स है, सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्टेप, और थर्ड है फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश इज अ कंसिडर एज अ हॉरिजॉन्टल स्पैन, इट इज़ टेकन एज अ 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो ये आप एज्यूम करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये आपको बहुत बार इसमें दिया भी होता है प्रॉब्लम्स में, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या फिर नहीं दिया होगा तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, सो नाउ सेकंड लोड इज़ लाइव लोड। अब हमें यहाँ पे स्टडी करना है लाइव लोड के बारे में। हमने जो अभी डेड लोड देखा तो ये फिक्स होता है, सेल्फ वेट है, उसके बाद में सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, स्टेप का सेल्फ वेट, फ्लोर फिनिश का सेल्फ वेट, ये सारा फिक्स है। लेकिन लाइव लोड कैसा होता है, ये मतलब मूव होता है हर बार, ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो कैसे, मतलब लाइव लोड क्या है, पब्लिक बिल्डिंग है तो उसमें क्या होता है, लाइव लोड ज़्यादा होता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें लाइव लोड कम होगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में या फिर 4 to 10 मेंबर्स है तो उनका लाइव लोड कम होगा। लेकिन जब आप पब्लिक बिल्डिंग कंसिडर करोगे या फिर एक स्कूल बिल्डिंग है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे करने वाले, तो उनका लाइव लोड तो वो हम उसके हिसाब से लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लाइव लोड इज़ टेकन अकॉर्डिंग टू IS 875 1987 पार्ट 2। 1987 पार्ट 2 में आपको यहाँ पे दिया है कि लाइव लोड कितना होना चाहिए। तो लाइव लोड इज़ कंसिडर्ड एज अ 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, मतलब आप 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर भी लेते हैं ऑन अ बिल्डिंग वेयर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर क्राउडिंग सच एज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, hotel, hostel, club, etc. The live load on a building which are liable from overcrowding is taken as a 4 to 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा वहाँ पे आप 4 to 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर भी ले सकते हैं। जहाँ पे क्राउड, मतलब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हो तो वहाँ पे क्राउड कैसा होगा, कम होगा, तो वहाँ पे आप 3 ले सकते हैं, सच एज अ पब्लिक बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। तो कमर्शियल होगा तो 4 to 5 लेना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और रेसिडेंशियल होगा तो 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आप ले सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे स्टडी करना है डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ स्टेयर। तो स्टेयर कैसे डिज़ाइन करने हैं और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। डिज़ाइन प्रोसीजर, फर्स्ट इज़ हियर एज्यूम राइज। तो राइज कितना होना चाहिए दिया है तो वो आप ले सकते हो, और आपको प्रॉब्लम्स में दिया नहीं है, आपको डिज़ाइन करना है, सारी बातें आपको कंसीडर करना है। तो कितना होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, तो कितना लेना है। आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी तो राइज 150 mm to 180 mm होना चाहिए, और आपकी पब्लिक बिल्डिंग होगी तो राइज कम होना चाहिए, वो होता है 120 mm to 150 mm। जो पब्लिक बिल्डिंग होती है उसमें हम राइज 120 mm to 150 mm ही प्रोवाइड करते हैं, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम 150 mm to 180 mm ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हाइट ऑफ वन फ्लाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या है, हाइट ऑफ वन फ्लाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब आपके फ्लोर की हाइट है 3 तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये कितना होगा 1.5। ये आता है रेसिडेंशियल में, इसको बोलते हैं डॉगलेग स्टेयर। ऐसे में आप डॉगलेग स्टेयर प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड है आपको ओपन वेल स्टेयर प्रोवाइड करना है, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो भी 3 होगी तो उसको डिवाइडेड बाय 2.5 करना है, तो वो आप ओपन वेल स्टेयर केस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है ओपन वेल स्टेयर केस मतलब क्या है, ये 270 डिग्रीज के एंगल में होता है, ऐसे आप प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं आप ओपन वेल स्टेयर केस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थर्ड, नंबर ऑफ राइजर, राइज कितना होना चाहिए।
हाइट ऑफ वन फ्लाइट डिवाइडेड बाय राइज। तो राइज, एक राइज है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वन फ्लाइट डिवाइडेड बाय राइज कितना होता है, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ राइजर। उतने आपके यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर आते हैं। उसके बाद में फोर्थ है नंबर ऑफ ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड कितना होना चाहिए, जितने भी आपके नंबर ऑफ राइज आएंगे उसमें से एक माइनस करना है, उतने आते हैं आपके ट्रेड। मतलब 10 आपके राइजर होंगे तो 10 - 1 वो आता है आपका 9 ट्रेड। ओके, फिफ्थ है आपका विड्थ ऑफ स्टेयर। तो स्टेयर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ ऑफ स्टेयर है यहाँ पे हमने अब पहले ही स्टडी किया है रिक्वायरमेंट्स में। तो हमने वहाँ पे ही देखा कि कितना होना चाहिए, अप टू 900 mm तक। तो हमने देखा कि ये 0.8 मीटर टू 1 मीटर तक भी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ले सकते हैं। और पब्लिक बिल्डिंग में हम ये 1.2 मीटर से आगे, जैसे जैसे क्राउड होगा तो उसके हिसाब से कैसी बिल्डिंग है वो आप ले सकते हैं। तो 1.8 मीटर टू 2 मीटर। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ लैंडिंग। तो लैंडिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ ऑफ स्टेयर। यहाँ पे ये देखो, अभी विड्थ ऑफ स्टेयर मतलब क्या है कि आपको लैंडिंग कितना होना चाहिए। ये देखो, आप ऐसे चढ़ रहे हो ऊपर, तो उसके बाद यहाँ पे जो जगह बचेगी ऐसी, तो ये क्या होगा, ऊपर चढ़ने के लिए ये दोनों के बीच में का ये जो पोर्शन है, इधर के स्टेयर की विड्थ और इधर के, ये दोनों का एडिशन आपका क्या होता है, विड्थ ऑफ स्टेयर होता है। दोनों लैंडिंग का एडिशन उसको बोलते हैं, दोनों स्टेयर्स उसको बोलते हैं आप विड्थ ऑफ लैंडिंग। नेक्स्ट है अवेलेबल लेंथ, लॉन्ग स्पैन -2 विड्थ ऑफ लैंडिंग। तो अवेलेबल लेंथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, तो लॉन्ग स्पैन -2 विड्थ ऑफ लैंडिंग। तो ये आता है आपका अवेलेबल लेंथ। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड कितना होना चाहिए, ये ट्रेड है तो ये कितना होना चाहिए, अवेलेबल लेंथ जो भी हमने यहाँ पे निकाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ट्रेड निकाला। नंबर ऑफ ट्रेड क्या होता है, नंबर ऑफ राइजर -1, तो आता है आपका नंबर ऑफ ट्रेड। उसको आप क्या करते हो, अवेलेबल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड लिया तो आपको ट्रेड की पर्टिकुलर एक इसका डायमेंशन मिल जाता है। उसके बाद में 9th है इफेक्टिव स्पैन। तो आपके जो भी ये है स्टेयर्स, उसका स्पैन कितना होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा स्टेयर है, तो ये इसका स्पैन कितना होना चाहिए, इफेक्टिव स्पैन मतलब यल इफेक्टिव। तो ये यहाँ से इसकी वॉल और यहाँ की वॉल, ये दोनों का सेंटर पॉइंट से उसको बोलते हैं आप इफेक्टिव लेंथ। तो वो कितना होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल, ये वॉल से ये वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें लेना है, इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ वॉल +2 विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ। तो ऐसे आप इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करते हो। हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे, मतलब एक्चुअल कैसे निकालना है। उसके बाद 10th पॉइंट है आपका डेप्थ थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब। तो वेस्ट स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो फर्स्ट है इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल, मतलब जो वेस्ट स्लैब है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। इसके ऊपर आपके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो इसकी प्रॉपर ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, इंक्लाइन विड्थ। तो ये भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये होती है यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 20 टू यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 25। तो जो भी बड़ा आएगा वो हम पहले यूज़ करते हैं। सेकंड है ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल, इसको बोलते हैं डी अवेलेबल। डी अवेलेबल कवर प्लस डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय 2, वो हम लेते हैं ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल। मतलब क्या, कैपिटल डी, इसको बोलते हैं आप कैपिटल डी। तो आपको स्मॉल डी निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, ये कैपिटल डी मतलब ओवरऑल है, और स्मॉल डी कैसे निकालते हैं आप, यहाँ पे जो बार होगा उसका कवर, तो यहाँ तक ऊपर जो आएगा उसको बोलते हैं आप स्मॉल डी। नेक्स्ट है लोड्स। तो हमने लोड्स की स्टडी किया, लेकिन अभी एक्चुअल कैसे लोड्स कैलकुलेट करने हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है सेल्फ वेट ऑफ द वेस्ट स्लैब पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया। तो सेल्फ वेट कितना होना चाहिए, तो 25 इंटू डी अवेलेबल। ये देखो अभी हमें सेल्फ वेट निकालना है, तो 25 इंटू डी इंटू कैपिटल डी मतलब डेप्थ जो भी है वेस्ट स्लैब की वो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लेना है आपको आर स्क्वेयर मतलब राइज का स्क्वेयर प्लस ट्रेड का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी। इसको बोलते हैं आप
ये आता है किलो न्यूटन मीटर में। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ वेट ऑफ द वेस्ट स्लैब। अभी नेक्स्ट है वेट ऑफ स्टेप पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, वेट ऑफ स्टेप, मतलब एक स्टेप का कितना वेट होता है, तो उसको बोलते हैं आप 25 इंटू आर बाई टू। मतलब क्या 25 इंटू आर क्या है, आर है राइज बाई टू। तो ये आएगा आपका वेट ऑफ स्टेप। एक ये है आपकी स्टेप्स, उसका वेट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे निकालना है डिज़ाइन मूवमेंट। तो डिज़ाइन मूवमेंट, इसके ऊपर क्या क्या मूवमेंट्स आता है, मतलब ये आपका स्टेयर्स है, तो ये आपका ये है, तो यहाँ पे लैंडिंग होती है, तो इसका एरिया अलग होगा, यहाँ पे भी लैंडिंग होगी, इसका एरिया अलग होगा, मतलब वेट अलग होगा, और यहाँ का भी वेट अलग होगा। तो ये वेट और ये वेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद में इसके ऊपर क्या मूवमेंट आएगी वो भी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट है ड्रॉ फिगर ऑफ लैंडिंग। आपको क्या करना है, पहले ऐसी फिगर्स ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में आपको समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यहाँ पे एज्यूम करना है। उसके बाद फाइंड आउट अ मैक्सिमम मूवमेंट वेयर शेयर फोर्स इज 0। आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, तो मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, फिर WL²/8 ऐसे आप मूवमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद है कैलकुलेट डेप्थ रिक्वायर्ड बाय इक्वेटिंग मैक्सिमम मूवमेंट टू रेजिस्टिंग PM। तो यम आपको एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस के लिए कितना आता है, तो उसका फॉर्मूला है QBD²। तो ये आप यूज़ करके क्या डी रिक्वायर्ड निकाल सकते हो। उसके बाद आपको लेना है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मेन स्टील AST। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, मेन स्टील निकालना है। तो मेन स्टील क्या है, AST डिवाइडेड बाय यम AST इक्वल टू यम डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू J इंटू डी। तो यम क्या है, मूवमेंट जो हमने निकाला, मूवमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा ST मतलब क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, इंटू J क्या है, लीवर आर्म, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब। तो वहाँ से आपको मिलेगा AST। तो AST मिनिमम कैसे लेना है, AST मिनिमम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.12% ऑफ AG। 0.12 जब कहाँ पे यूज़ करना है, ये माइल्ड स्टील होगा, मतलब स्टील का ग्रेड Fe250 होगा, तो आपको ये 0.12% ऑफ AG लेना है। इफ़ ग्रेड ऑफ स्टील इज HYSD स्टील, मतलब Fe415 और Fe500 होगा, तो ये परसेंटेज कितना लेना है, 0.15% ऑफ AG। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। प्रोवाइड AST। तो ये दोनों में से AST और AST मिनिमम, ये दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी आएगी वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ओके, एज्यूम डायमीटर ऑफ बार। आप डायमीटर एज्यूम कर सकते हैं स्टेयर केस का, तो नॉर्मली 8 to 10 mm तक आप एज्यूम कर सकते हो। उसके बाद स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग मतलब क्या, हम जो बार्स यूज़ करने वाले हैं, ऐसे बार्स यहाँ पे, तो उसमें का स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो स्पेसिंग 1000 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डायमीटर ऑफ बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय AST। मतलब क्या है फॉर्मूला, 1000 इंटू π/4 इंटू D² डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय AST। मतलब हमने जो ऊपर 13 स्टेप में निकाला है मेन स्टील और AST मिनिमम में से जो बड़ा आएगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। उसके हिसाब से आप 2 बार में का स्पेसिंग ले सकते हो। फर्स्ट ये फॉर्मूला है। सेकंड है 3 इंटू डेप्थ, जो भी डेप्थ आपने लिया है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद यस 300 mm, यूज़ विच एवर इज़ लेस। तो ये तीनों में से जो भी छोटा होगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। मतलब एक है 500, दूसरा है 750 और तीसरा है 300। तो ये तीनों में से 300 लेस है, तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे प्रोसीजर से हमें स्टेयरकेस डिज़ाइन करने हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया व्हाट इज़ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब राइज क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, उसके बाद में हमने हैंड रेल्स क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग पार्ट्स की स्टडी किया। उसके बाद में स्टेयरकेस के टाइप्स कौन से होते हैं उसकी हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद में स्टेयरकेस के ऊपर कौन से लोड एक्ट होते हैं, वो लोड होने के बाद में हमने इसके ऊपर स्टडी किया कि लोड आने के बाद कैसे उसको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एज पर IS कोड भी हमने यहाँ पे देखा। ओके,
तो किसी को इस लेक्चर में डाउट होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।